सालों में दुनिया के कई सिटीज़, प्रशांत धवन जी की वीडियो थी, कई सिटीज़ डूब जाएंगे। सही। क्यों डूब जाएंगे? ये अंटार्कटिका जो है, यहाँ पे जितनी बर्फ़ पड़ती थी या जितना भी हिसाब किताब यहाँ था वो कम होता जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन अंटार्कटिका रिसर्च प्रोग्राम, इसरो स्पेस भारती से स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel Joe's Concept Vlogs. Today I have come up with an interesting topic, India's scientific ground station at Antarctica. During the past few decades of the 21st century, remote sensing and geographical information system through Earth observation satellites have become one of the most important tools for many of the societal applications of our day-to-day life. India's remote sensing program plays an important role in collecting data from different parts of our globe. Let's understand what is IRS program. India's remote sensing program was developed with the idea of applying space technologies for the benefit of humankind and the development of the country. India's remote sensing program under the Indian Space Research Organisation (ISRO) started off in 1988 with the IRS-1A, which was successfully launched into a polar sun synchronous orbit on March 17, 1988. The program involved the development of three principal capabilities: to design, build and launch satellites to a sun synchronous orbit, to establish and operate ground station for spacecraft control, data transfer along with data processing and archival, to use the data obtained for various applications on the ground. Let's understand what is Indian Remote Sensing Satellite. Indian remote sensing satellites are a series of Earth observation satellites built, launched and maintained by Indian Space Research Organisation (ISRO). Data from IRS satellites are used for various applications in the areas of agriculture, hydrology, geology, drought and flood monitoring, marine studies, land use and land cover mapping, snow studies, etc. by Resources Survey and management under the National Natural Resources Management System (NNRMS). Indian Antarctic Program. The Indian Antarctic Program is a multidisciplinary, multi-institutional program under the control of the National Centre for Polar and Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Government of India. The Indian Antarctic Program was initiated in 1981 with the first Indian expedition to Antarctica. Dakshin Gangotri is the first scientific base of India at Antarctica, which was a part of Indian Antarctic Program. It is located at a distance of 2,500 kilometers from the South Pole. In 1989, Maitri, India's second permanent research station, was constructed as the part of Indian Antarctic Program. The name Maitri was suggested by then Prime Minister Indira Gandhi.
Bharti is the newest Antarctica ground station commissioned in August 2013. Under the program, atmospheric, biological, earth, chemical and medical sciences are studied by India. Now, let's know in detail about the Bharti station at Antarctica. Antarctica Ground Station for Earth Observation Satellites. ISRO has established the Antarctica Ground Station for Earth Observation Satellites at Bharti Station, Larsemann Hills, Antarctica in 2012-2013 for receiving Indian remote sensing satellite data. This station is maintained for flawless operations and smooth flow of IRS satellites Earth observation data from Antarctica. This advanced ground station was commissioned during August 2013. It is receiving data from IRS satellites like ResourceSat-2, RISAT-1, Cartosat-1 and transferring the same to National Remote Sensing Center, Shadnagar near Hyderabad. The ground station is continuously operated and maintained by engineers of ISRO who are under deputation to Bharti Station, Antarctica on regular basis. Let's understand the challenges faced in Antarctica ground station. Limited living space for a year is a situation to be faced by every member. Staying in isolation away from families and confined to a small group. During the period of polar nights and days, there is no sunrise and sunset for about 49 days. They have to deal with disturbed sleep cycles due to lack of natural sunlight in winter and the presence of continuous daylight in summer. Climate at Antarctica is harsh. All the systems have to withstand heavy winds up to 90 knots, snow and sub-zero temperatures of minus 45 degrees Celsius. The station is isolated from mainland and movements are restricted in winter from March to November because of the weather. During this period, in case of emergency, no systems or spares or assistance is available and they have to manage with available resources. Some of the technical complex issues had to be resolved in consultation with the domain and mission experts in the mainland through audio and video conferencing mode only. Hope you like this video. Please like, share and don't forget to subscribe my channel, Just Concept Vlogs. Bye! जी जनाब, ग्राउंड स्टेशन अंटार्कटिका पे मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं। क्यों वजह? मतलब हैरत अंगेज वीडियो लगी है मुझे। अच्छा, मैंने जो अंटार्कटिका के बारे में आपसे पहले जानता था वो ये जानता हूँ कि ज़िंदगी का नाम नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, और बहुत ठंड होती है, साल के 12 महीने माइनस डिग्री रहता है। वो ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अंटार्कटिका एक ऐसा बर-ए-आज़म है, जैसे हमने बचपन में पढ़े 7 बर-ए-आज़म कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, हाँ वही बर-ए-आज़म, मैंने उर्दू में पढ़े थे। तो आपने कॉन्टिनेंट क्या? बर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म अजीब सा लगता है ना मुझे। नहीं भाई, जो कॉन्टिनेंट क्या? सब कॉन्टिनेंट, जैसे इंडिया भी एक सब कॉन्टिनेंट है ना, बर-ए-सग़ीर पूरा था, ठीक है ना, इसी तरह अंटार्कटिका है सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट है। तो इसके बारे में हमने ये सुना है कि यहाँ पर बर्फ़ है, मतलब हमेशा बर्फ़ रहती है। यहाँ पर आसपास थोड़ा सा कहीं कम होता होगा तो वहाँ कोई ज़िंदगी होगी, वरना वहाँ पर रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो यानी सूरज है ही नहीं। देखिए वो कह रहे हैं 49 डेज़ में कभी एक बार। हाँ, लेकिन वही है ना, असल में देखिए सूरज है, ज़मीन है,
चांद है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है ना, प्लैनेट्स भी है, लेकिन ये वाला हिस्सा ऐसा है जिस पे रोशनी नहीं पड़ती, धूप नहीं पड़ती या बहुत कम कभी पड़ जाती है। ज़मीन घूम तो रही है सूरज के आसपास, ज़मीन अपने आप में भी घूम रही है, रिवॉल्व भी होती है ना, ठीक है ना, और रोटेट भी होती है, ठीक है ना। तो उस वजह से कुछ ऐसा सिस्टम है कि ज़मीन का इस टुकड़े पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सही है जी। अच्छा, कहीं पर ऐसा भी है कि 2-2 3-3 ऐसे महीने भी आते हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ कहीं ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 3-3 महीने तक सूरज गुरूब नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर बाकायदा एक मैंने वीडियो देखी तो एक बंदा कह रहा है कि ना सूरज निकलता है ना गुरूब होता है। 24 ये भी तो यही कह रहे थे ना, राइज होता है ना सेट होता है। तो सूरज निकल ही नहीं रहा, ना गुरूब हो रहा है, तो हम रोज़ा कैसे रखें, रोज़ा कब खोलें? अब जैसे रोज़ा होता है टाइमिंग, हाँ वो तो लेकिन सूरज की रोशनी से ठीक है ना, हाँ सही कह रहे तो चांद मगरिब का टाइम हो गया तो फिर किसी ने कहा है कि मक्का मदीना के हिसाब से खोल लो, तो ये खोल लो। यानी वो बता रहा था कि यहाँ 2 महीने तक ऐसा भी वक्त आता है कि इतनी दिक्कत, ऐसे भी मसले मसाइल आ जाते हैं। तो वो मैं ये सोच रहा था कि कोई ना कोई इसका हल होगा, वो मुफ्ती वगैरह बताते हैं, लेकिन वो बात एक अलग हो जाएगी। सही है जी। तो अंटार्कटिका के हवाले से, अच्छा अंटार्कटिका जो है वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया का, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है जी। उस क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से आप अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो, तो मेंटेन रखना ज़रूरी है और मिसाल के तौर पे अवेयरनेस हो। मिसाल के तौर पे हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें ये पता चला था कि आने वाले 70 80 90 सालों में दुनिया के कई सिटीज़, प्रशांत रमन जी की वीडियो थी, कई सिटीज़ डूब जाएंगे। सही। क्यों डूब जाएंगे? ये अंटार्कटिका जो है, यहाँ पे जितनी बर्फ़ पड़ती थी या जितना भी हिसाब किताब यहाँ था वो कम होता जा रहा है, पिघलती है बर्फ़, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो ये जो समंदर है ना पूरी दुनिया के आस उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। जब समंदर लेवल बढ़ रहा है, समंदर में इजाफा हो रहा है तो वो फिर मतलब है कि अच्छा मौसम तब्दील हो रहे हैं, जहाँ पे पहले शदीद गर्मियाँ होती थी अब वहाँ सर्दियाँ भी पड़ रही हैं, जहाँ पे सर्दियाँ होती थी। आपको पता है सिंध का टोटली मौसम चेंज हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और आपको पता है हमारे यहाँ अगस्त और सितंबर में बारिशें नहीं होती थी, नवंबर दिसंबर में। सर्दी कब होती थी? दिसंबर नवंबर वगैरह में। दिसंबर जो था ना, दिसंबर सख्त सर्दी। आपको पता है आज सुबह मैं काँप रही हूँ सर्दी से। सही, मतलब मौसम, बिना मौसम की बारिश, बिना मौसम की सर्दी, बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। जो गर्म ममालिक थे, जो गर्म एरियाज थे, जैसे जो खित्ते थे गर्म, जो सूबे गर्म थे वो ठंडे हो गए, जो ठंडे थे वो गर्म हो गए। आपको पता है मैंने एक वीडियो में देखा कि लंदन वगैरह की साइड पे बहुत गर्मी पड़ रही है, हालांकि देखें वो ठंडे इलाके, वो ठंडे, वहाँ पे बर्फबारी तो होती है। इस तरह माहौलियाती तब्दीली हो रही है, तो इन पे नज़र रखना, ये जो रिसर्च प्रोग्राम होते हैं, माहौल पे नज़र रखना, आने वाले वक्त की प्लानिंग करना। अच्छा फिर ये जो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी नहीं है, फिर वहाँ उन खित्तों पे नज़र कैसे रखी जाए? तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू अब देखें कि वहाँ पर अगर सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ का जो प्रोग्राम है बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा सख्त जान, यानी कि यूँ समझ लें कि मतलब नामुमकिन तरीन चीज़ें हैं ये। अगर ऐसी जगह पे इस स्टेशन बनाया हुआ है इन्होंने, और बाकायदा वो सैटेलाइट के ज़रिए से भी इमेजेस आती हैं और ये बाकायदा वहाँ से पैगाम भेजते हैं यहाँ की चीज़ें, यहाँ का मतलब है कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से, कितनी डिग्री बर्फ़ पड़ी, कितनी डिग्री नहीं पड़ी, इस वक्त कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो टेक्निकल चीज़ें हम नहीं बात कर सकते, नहीं भी है वहाँ पे जो हमें हमारी लाइफ में मिलती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जब अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, तो फिर बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा गंभीरता हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। लेकिन जो चीज़ें मुहैया हैं, जो अवेल हैं, फिर उन्हीं से काम लेना पड़ता है। अच्छा दूसरी बात ये भी बताइए मुझे कि 1988 में स्टार्ट हुआ था, अब अभी की बात तो नहीं है, यानी कितने पहले से स्टार्ट हुआ था, फिर 2012 13 डिफरेंट ईयर्स बताते गए वो। अच्छा इन चीज़ों से आपको नहीं लग रहा कि यार इंडिया एक डेवलप कंट्री है? मतलब देखें ये कुछ ऐसी निशान, देखें आप सबसे पहले तो आप रोटी कपड़ा और मकान से जान छुड़ाते हैं, फिर उसके बाद आप रिसर्च चीज़ों पे जाते हो ना यार, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आपको नहीं लग रहा यार कि वाकई यार इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की की है? वरना तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो भी अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो 2020 में 2021 में कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इतने पहले से। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वाकई मतलब है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्पेस के हवाले से, चंद्रयान प्रोजेक्ट के हवाले से, सूरज
के हवाले से। सूर्या नहीं आदित्य, मंगलयान, तो इस तरह के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं या वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट जो तब्दील हो रहा है, इसके हवाले से इस तरह के रिसर्च प्रोग्राम मैं कहता हूँ कोई ऐसा देश जो डेवलप हो रहा है अभी वो नहीं कर सकता, जो वाकई डेवलप कंट्री। सैटेलाइट और इन चीज़ों के हवाले से हम 2-3 वीडियो देख ली हैं डिटेल्ड में, तो मुझे थोड़ा सा अब आइडिया हो गया इंडिया के हवाले से स्पेस में भी बड़े मतलब अपने झंडे गाड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। नेविक के हवाले से हमने वीडियो देखी कि हर कंट्री का अपना कोई मैप सिस्टम नहीं होता, इंडिया का अपना है, स्पेस स्टेशन अपना है, बहुत बड़ी बात अपने आप में, चंद ही कंट्रीज़ का है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। और एक सबसे यूनिक बात, बच्ची बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है सीरियसली, और बोलने का अंदाज। और आप ये देखें कि यहाँ के इस तरह के छोटे बच्चे इस तरह के व्लॉग वीडियो और बात देखकर मोटिवेट किया जा रहा है हमें। जिन्होंने सजेस्ट किया यकीनन उन्होंने पहला वीडियो देखी होगी, उनके लिए नहीं तो नहीं होगी, वो देखते होंगे। तो ये एक अपने आप में इस तरह के, अच्छा हमारे यहाँ इस तरह के बच्चों को मतलब घास भी नहीं डाले नहीं, वो उनको क्या पता, उनको पबजी के अलावा और इनके अलावा क्या पता। अगर कोई रट्टा वेकेशन करवा दे, कोई थोड़ा सा मतलब एक होता है ना स्क्रिप्टेड करवा दे कि भाई तुम बेटा तुम्हें ये बोलना है, वो बैठ भी जाए, लेकिन वो डीमोटिवेट हो जाए कुछ ही अरसे में कि यार कोई तो देख ही नहीं रहा, कोई व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, व्यूज़ का ना आना, लोगों को ना देखना, इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, है ना, यही होता है, डीमोटिवेशन हो जाती है इंसान की। लेकिन बड़ी बात है कि इस उम्र में इस तरह की चीज़ों पे फोकस करना, फिर इस तरह का चैनल बनाना, पेरेंट्स होंगे, बड़े होंगे, उन्होंने ही ऐसे सजेस्ट किया होगा। जिस इस उम्र में बच्चे खेल कूद में ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम आप सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ौरी तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक होगा, वीडियो का लिंक होगा, उन्हें चैनल को लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, लाजमी इन्हें कमेंट्स करें, इनको एप्रिसिएशन दें ना आप भूलें, आप इनको सराहें। आपका अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको सराहें, ये आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप इन्हें अप्रिशिएट करें जितना हो सके। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।